Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all are fine. I am your SST teacher. We are going to read lesson number 12. It is on page number 69. The name of the lesson is SAARC. The full form of SAARC is the South Asian Association for Regional Cooperation. It was established to promote mutual assistance in economic, social, culture, technology, and scientific fields. The objectives of this unit are to know about the purpose of SAARC along with its member countries. Students, we are going to read the introduction of SAARC, so let's start. SAARC stands for the South Asian Association for Regional Cooperation. SAARC is an economic, underline the word economic and write its meaning financial, and political organization, underline the word organization and write its meaning management, of 8 countries in South Asia. The idea of regional, underline the word regional and write its meaning related to area. Political and economic cooperation, cooperation, underline, write its meaning teamwork. In South Asia was first raised, underline and write its meaning promoted in 1980 by Bangladeshi President Ziaur Rahman. स्टूडेंट्स, किसी कंट्री के इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली इश्यूज को सॉल्व करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, एंड दिस आइडिया हैज़ प्रमोटेड बाय बांग्लादेशी प्रेसिडेंट जियाउर रहमान, एंड व्हेन ही हैज़ गिवन दिस आइडिया in 1980. The first summit underline and write its meaning meeting was held in Dhaka on 8 December 1985. यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन की जो फर्स्ट समिट थी, फर्स्ट मीटिंग थी, वो कब हुई? इन 1985 में, एंड वेयर? इन ढाका, एंड ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश. The organization was established means made by the governments of Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. Since then the organization has expanded, underline the word expanded and write its meaning became greater, by accepting one new full member, Afghanistan, in 2005. Students, the government of 7 countries made this organization, but it became greater in 2005 by added one more member. The name of that member was Afghanistan, and when it was added in 2005, it was formed means set up, to provide means give, a platform means source, for the people of South Asia to work together for speeding up means increasing the process means procedure of economic and social development means growing up among the member states. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर टीम वर्क के जरिए इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलप की स्पीड को इंक्रीज किया जा सकता है. Students, now it's a turn of page number 70 and the first paragraph is SAARC countries have agreed, underline the word agreed and write its meaning decided, अपॉन 5 एरियाज ऑफ कॉपरेशन, यानी कि ये 5 एरियाज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, फील्ड्स हैं जिनमें SAARC के 8 मेंबर्स ने या कंट्रीज़ ने एक दूसरे को हेल्प करना है. द नंबर 1 इज़ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर मीन्स कल्टिवेटिंग द ग्राउंड और हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, और ये कल्टिवेशन का काम कहाँ पे होता है? डेफिनेटली विलेजेस में. एंड रूरल, अंडरलाइन द वर्ड रूरल, राइट इट्स मीनिंग विलेज. डेवलपमेंट यानी कि जो विलेजेस हैं और रूरल एरियाज़ हैं इनको डेवलप किया जाए. टेलीकम्युनिकेशंस, अंडरलाइन एंड राइट इट्स मीनिंग टेक्नोलॉजी ऑफ कॉन्टेक्टिंग अदर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. हेल्थ एंड पॉपुलेशन एक्टिविटीज़, हेल्थ इश्यूज़ में भी एक दूसरे को हेल्प करना है. ट्रांसपोर्ट वर्ड अंडरलाइन, राइट इट्स मीनिंग व्हीकल सिस्टम. एंड द लास्ट वन इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. स्टूडेंट्स, ये 5 फील्ड्स हैं जिनमें इन 8 कंट्रीज़ ने एक दूसरे को हेल्प करना था, और ये 5 फील्ड्स कौन सी थी? इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइंस. Students, now we are going to read about 8 members of SAARC. The first one is Pakistan. Pakistan appeared, underline the word appeared and write its meaning visible, on world map as an Islamic state on 14th August 1947. Means Pakistan came into being on 14th August 1947. It became the first Islamic country to become nuclear power on 28 May 1998. यानी कि इस्लामिक कंट्रीज़ में पाकिस्तान सबसे पहले न्यूक्लियर पावर बनना. एंड व्हेन हैड इट हैपन? ऑन 28 मई 1998. इट्स कैपिटल इज़ इस्लामाबाद. कैपिटल मीन्स जो मेन सिटी है, मेजर सिटी है, सेंट्रल सिटी है, वो इस कंट्री की कौन सी है? इस्लामाबाद. उर्दू एंड इंग्लिश आर इट्स ऑफिशियल लैंग्वेजेस. वो उर्दू और इंग्लिश इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं. ऑफिशियल लैंग्वेज ऑल्सो कॉल्ड स्टेट लैंग्वेज.
A country's official language refers to the language used in government, यानी कि किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट लेवल पे जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। 18 SAARC summits have been held till November 2014. Pakistan has hosted 2 SAARC summits, one in 1988 and the other in 2004. यानी कि नवंबर 2014 तक SAARC की टोटल 18 समिट्स हुई हैं, जिनमें से 2 को पाकिस्तान ने होस्ट किया है, one in 1988 and the other in 2004. Pakistan is blessed to have world's highest paved underline, rights is meaning fully built, international road कराक्रम। पाकिस्तान में दुनिया की सबसे पुख्ता सड़क है जो कि पहाड़ों को काट के बनाई गई है और उसका नेम है कराक्रम। और इसकी सबसे खूसी बात यह है कि ये जो शाहरा है ये पाकिस्तान को चाइना से जा मिलाता है, ये इतना लॉन्ग रोड है। इट इज़ ऑल्सो फेमस मीन्स पॉपुलर फॉर इट्स लार्जेस्ट मीन्स बिगेस्ट, डीप सी, ये जो डीप सी है पाकिस्तान भी है अरेबियन सी, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन इन द वर्ल्ड नेम्ड एज ग्वादर पोर्ट। Students, now the run of the India. India is the neighboring country of Pakistan. Neighboring means living nearby. और ये पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्री है, जिस तरह से हमारे घर के इर्द गिर्द जो भी सराउंडिंग्स में जो होम होते हैं वो हमारे नेबर्स होते हैं, इस तरह पाकिस्तान के भी नेबर्स हैं और उनमें जो एक नेबर है वो है इंडिया। इट केम टू बीइंग ऑन 15 अगस्त 1947, यानी कि पाकिस्तान के बनने के वेरी नेक्स्ट डे ही इंडिया कायम हुआ। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री। पॉपुलस मीन्स हैविंग अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन, मैनी पीपल आर देयर। ये पूरी दुनिया की सेकेंड नंबर की पॉपुलस कंट्री है। और फर्स्ट में कौन सी? फर्स्ट वन इज़ अ चाइना। इट्स कैपिटल मीन्स मेजर सिटी इज़ न्यू दिल्ली। पाकिस्तान का कौन सा था मेजर सिटी? पाकिस्तान का था कैपिटल इस्लामाबाद, और इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली। इंग्लिश एंड हिंदी आर इट्स ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ऑफिशियल लैंग्वेज मीन्स गवर्नमेंट लैंग्वेजेस, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट लैंग्वेजेस कौन सी थी? ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी थी? उर्दू एंड इंग्लिश। और इंडिया की है हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश दोनों की है, और पाकिस्तान में उर्दू है और इंडिया में साथ उसके हिंदी है इंग्लिश के साथ। Students, next one is Afghanistan. Afghanistan is a neighboring country of Pakistan. Neighboring means living nearby. जिस तरह से आपके होम्स के अराउंड में जितने भी हाउसेस आएंगे वो सारे आपके नेबर्स हैं, इसी तरह से किसी भी कंट्री के अराउंड में जितनी भी कंट्रीज़ आएंगी वो सारी उस कंट्री की नेबरिंग कंट्री होगी। तो पाकिस्तान के लिए इंडिया भी नेबर कंट्री है और अफगानिस्तान भी। इट्स कैपिटल इज़ काबुल। काबुल इसका मेन सिटी है, मेजर सिटी है। पश्तो एंड दारी आर इट्स ऑफिशियल लैंग्वेजेस। जिस तरह से पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी उर्दू एंड इंग्लिश, इंडिया की थी इंग्लिश एंड हिंदी, और अफगानिस्तान की कौन सी हैं? दारी एंड पश्तो। अफगानिस्तान मेन सोर्स ऑफ इनकम कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, यानी कि जो अफगानिस्तान का मेन सोर्स है इनकम का वो क्या है? एग्रीकल्चर। अफगानिस्तान इज़ ऑल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज विद द मेन वंस बीइंग नेचुरल गैस एंड ऑयल। अफगानिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज गैस और ऑयल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। नेक्स्ट वन इज श्रीलंका। श्रीलंका इज़ अ स्मॉल आइलैंड नेशन। आइलैंड नेशन मीन्स यानी कि उसके अराउंड में सारा वाटर है, विद कोलंबो एज कैपिटल। उसका जो कैपिटल है मेन सिटी है वो है कोलंबो। जैसे कि पाकिस्तान में है इस्लामाबाद, इंडिया में है न्यू दिल्ली, अफगानिस्तान में है काबुल और श्रीलंका में है कोलंबो। सिन्हाला एंड तमिल आर ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ये दो लैंग्वेजेस हैं जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, यानी कि गवर्नमेंट तौर पे यूज़ होती हैं, ऑफिस में यूज़ होती हैं। इट इज़ मेनली एन एग्रीकल्चरल कंट्री। एग्रीकल्चरल कंट्री है, जिस तरह से पाकिस्तान भी एग्रीकल्चरल कंट्री है। अफगानिस्तान इज़ ऑल्सो एग्रीकल्चरल कंट्री। श्रीलंका इज़ ऑल्सो एन एग्रीकल्चरल कंट्री। इट इज़ सेल्फ सफिशिएंट मीन्स इंडिपेंडेंट इन प्रोड्यूसिंग मीन्स ग्रोइंग राइस विच इज़ द लार्जेस्ट मीन्स बिगेस्ट। कल्टिवेशन मीन्स प्रोडक्शन, यानी कि श्रीलंका में बहुत ज़्यादा राइस की प्रोडक्शन की जाती है। श्रीलंका इज़ अमंगस द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ टी इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो टी एक्सपोर्ट करता है वो कौन है? श्रीलंका। नेक्स्ट वन इज़ मालदीव्स। द रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स इज़ एन आइलैंड कंट्री नोन फॉर इट्स वार्म ओशन वाटर। मालदीव्स का जो फुल नेम है वो है द रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स। ये भी एक आइलैंड कंट्री है, जिस तरह से श्रीलंका आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री मीन्स उसके राउंड में सारा वाटर है, और इसमें ये भी बात है कि जो इसके राउंड में वाटर है वो है वार्म वाटर, यानी कि वो जो ओशन है उस ओशन के अंदर वार्म वाटर है, हॉट वाटर है। इट इज़ मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑलमोस्ट 1200 आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन। ये इंडियन ओशन के 1200 आइलैंड्स का ग्रुप है। पीपल लिव ऑन 250 ऑफ दोज आइलैंड्स। 1200 में से 250 आइलैंड्स में लोग रहते हैं। द कंट्रीज कैपिटल इज़ द नेम ऑफ सिटी ऑफ मेल। इसका जो कैपिटल सिटी है वो है मेल। इट इज़ द स्मॉलेस्ट सार्क कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड एरिया। ये सार्क कंट्रीज में सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है। किसके अकॉर्डिंग? किसके टर्म्स के लिहाज से? पॉपुलेशन एंड एरिया, यानी कि यहाँ पे लोग भी कम है, पीपल भी कम है, और यहाँ का जियोग्राफिकली जो एरिया है वो भी लेस है।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन इज़ नेपाल. नेपाल इज़ द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया. इंडिया की नेबरिंग कंट्री है नेपाल. इट्स कैपिटल इज़ काठमांडू विद नेपाली एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज. यहाँ का जो मेन सिटी है, मेजर सिटी है, वो है काठमांडू और नेपाली यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है. द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट इज़ ऑल्सो इन नेपाल. दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में है. माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए नेपाल की गवर्नमेंट. Next one is Bangladesh. Bangladesh appeared means came on the world map as an independent state on December 16, 1971. यानी कि बांग्लादेश केम ऑन टू बीइंग ऑन 16 दिसंबर 1971. स्टूडेंट्स आपको पता है ना कि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का ही पोर्शन था, उसी का पार्ट था, और फिर ये 1971 में पाकिस्तान से सेपरेट हो गया और इसका जो नेम था वो था बांग्लादेश. इट इज़ वन ऑफ द डेंसली मीन्स थिकली पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड. यहाँ पे भी बोलता पॉपुलेशन है. ढाका इज़ द कैपिटल सिटी एंड बंगाली इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज. जिस तरह से नेपाल का जो कैपिटल है वो है काठमांडू और नेपाली उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसी तरह से बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो है ढाका और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है. स्टूडेंट्स नाउ द लास्ट वन इज भूटान. भूटान इज द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया. नेपाल भी इंडिया का नेबरिंग कंट्री और भूटान भी इंडिया का नेबरिंग कंट्री है. इट्स कैपिटल इज थिम्पू. इसका जो कैपिटल है वो थिम्पू विद जोंखा एज ऑफिशियल लैंग्वेज और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है जोंखा. बांग्लादेश की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? बंगाली. और नेपाल की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? नेपाली. All the SAARC countries cooperate means help and stand with each other at the time of any problem. यानी कि जो 8 कंट्रीज़ हैं एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, हेल्प करते हैं कभी जब भी कोई प्रॉब्लम वाला टाइम आता है. देयर म्यूचुअल मीन्स कंबाइंड रिलेशनशिप इज़ वेरी हेल्दी एंड बेनिफिशियल मीन्स हेल्पफुल टू द डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेस ऑफ साउथ एशिया. यानी कि ये जो रिलेशनशिप है ये साउथ एशिया की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा. Friends, now we are going to solve the exercise on workbook. It is on page number 25. So question number 1 is choose the correct answer according to the content of lesson. They have given us many statements. Every statement has 3 options and we have to select one option according to the statement and also according to the content of lesson. So the first one is first SAARC summit was held on 8 December 1985. Where it was held? Dhaka. So make the tick on C. Next one is the world's highest paved international road is. Make the tick on A. Karakoram. Next is Afghanistan's main source of income comes from. Make the tick on B. Agriculture. Next is blank held an underwater cabinet meeting in 2009. Which country? Maldives. Make the tick on C. Last one is blank is the smallest SAARC country in terms of population and area, which is make the tick on B. Maldives. Next is page number 26 and question number 2 is match the countries with their capital cities. इन SAARC की 8 मेंबर्स को कंट्रीज़ को इनकी कैपिटल से मैच करना है. फर्स्ट वन पाकिस्तान इस्लामाबाद, नेपाल काठमांडू, भूटान थिम्पू, मालदीव्स मेल, इंडिया न्यू दिल्ली, अफ़गानिस्तान काबुल, बांग्लादेश ढाका, श्रीलंका कोलंबो. Question number 3 is label the SAARC logo with the names of SAARC countries. SAARC का लोगो दिया गया है और इसके साइड्स पे सारी ब्लैंक्स हैं, बॉक्सेस बने हुए हैं. इनके अंदर हमने इन 8 मेंबर्स के इन 8 कंट्रीज़ के नेम्स राइट करने हैं. फर्स्ट वन पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान. Next page number 27 short answer questions. Question number 1 is what is SAARC? SAARC is an economic and political organization of 8 countries in South Asia. Question number 2 is who gave the idea of SAARC? Bangladeshi President Ziaur Rahman gave the idea of SAARC. Students, now it's a turn to solve the subjective type long answer questions on notebook. So first we need to make the content page in this form. Now the question number 1 is what are the 5 areas in which SAARC members have agreed to cooperate with each other. यानी कि वो कौन से 5 एरियाज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, कैटेगरीज हैं जिसमें ये SAARC जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक दूसरे को हेल्प आउट करना है. तो ये 5 पॉइंट्स थे, 5 एरियाज़ थे. ये हमने बुक में रीड भी किए हैं. अब इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे एज इट इज़. Agriculture and rural development, telecommunication, science and technology. Third one is healthy and population activities. Fourth one is transport. And the last one is human resources development. Now we are going to solve the last question of this chapter.
राइट इन डिटेल अबाउट एनी 2 सार्क कंट्रीज़, यानी कि टोटल हमारे पास 8 कंट्रीज़ हैं सार्क में और उनमें से हमने किसी 2 कंट्रीज़ के बारे में राइट करना है। तो सबसे पहले हम चूज़ करेंगे पाकिस्तान, क्योंकि ये हमारी अपनी कंट्री है। सो लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान appeared on world map as an Islamic state on 14th August 1947. Everyone knew this. Next is it became the first Islamic state country to gain nuclear power on 28th May 1998. यानी कि सबसे पहले इस्लामिक कंट्री है जो एटम पावर बना। इट्स कैपिटल इज़ इस्लामाबाद। Urdu is the official language. And the second one is Nepal. Nepal is the neighboring country of India. Its capital is Kathmandu and Nepali is its official language. The world highest peak, Mount Everest, is also in Nepal. Alhamdulillah students, we have done our lesson. Hope you will be learn it. Allah Hafiz.